ابو بکر نے اپنے دل کے اندر روشن کیا تو صدیق اکبر بن کر کے چمکے ہیں. اور جب مصطفیٰ کا چراغ، مصطفیٰ کی محبت کا چراغ غریب نواز نے اپنے دل کے اندر روشن کیا تو غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ بن کر کے چمکے ہیں. اللہ اکبر. غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ بن کر کے چمکے ہیں. میں نے عالم تصور میں سوال کیا، اے میرے خواجہ آپ ہندوستان کے شہنشاہ ہیں، اے میرے خواجہ جب سے آپ ہندوستان میں تشریف لائے ہیں آپ ہندوستان کے شہنشاہ ہیں، آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں. آپ جائزہ لیجئے ہندوستان کی حکومت کا. ہندوستان میں حکومت بنتی ہے، بدل جاتی ہے، کسی کی 4 سال کے بعد بدل جاتی ہے، کسی کی 5 سال کے بعد بدل جاتی ہے، اور کسی کی تو بھیا 3 سال میں ہی گر جاتی ہے. حکومت 3 سال میں گر جاتی ہے. لیکن میرے خواجہ آپ کی حکومت ہندوستان پر ہے، آپ کی حکومت کا کسی نے نہ بدلا. تو غریب نواز فرماتے ارے حکومت اس کی بدلتی ہے جو تنوں کو جوڑ کر حکومت بناتا ہے، جو تنوں کو جوڑ کر حکومت بناتا ہے. ایک تن کو چھوڑا دوسرے کو جوڑا، ایک کو چھوڑا دوسرے کو جوڑا، دوسرے کو جوڑا تیسرے کو چھوڑا. اور اس سال تو یہ بہت ہی زیادہ ہو گیا، ایک کو چھوڑا دوسرے کو جوڑا. اللہ اکبر. غریب نواز فرماتے حکومت اس کی بدلتی ہے جو تنوں کو جوڑ کر حکومت بناتا ہے، لیکن غریب نواز نے تنوں کو جوڑ کر حکومت نہیں بنائی، دلوں کو جوڑ کر حکومت بنائی ہے. دلوں کو جوڑ کر حکومت بنائی ہے میرے پیارے. غریب نواز نے دلوں کو جوڑ کر حکومت بنائی ہے. اور غریب نواز کی شان تو مشہور ہے پیارے. آؤ میں آپ کو بتاتا چلو غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے، ہندوستان میں غریب نواز تشریف لا رہے ہیں، راجستھان کے جنگلوں سے جب آپ کا گزر ہوا تو انہی جنگلوں میں اللہ اکبر انہی جنگلوں میں شہاب الدین گوری کے لشکر کا ایک سپاہی جو اپنے لشکر سے بچھڑ گیا تھا، شہاب الدین گوری اللہ اکبر پرتھوی راج چوہان سے شکست کھا کر کے آ چکا تھا اور غریب نواز ہندوستان میں تشریف لا رہے ہیں. شہاب الدین گوری کے لشکر کے سپاہی نے دیکھا کہ ایک فقیر بابا ہے. پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اجمیر جا رہا ہوں. کہا بابا آپ اجمیر نہ جائیے، وہاں کا راجا بہت ظالم انسان ہے. اللہ اکبر. بابا اگر آپ جائیں گے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. ارے شہاب الدین جیسا انسان کامیاب نہ ہو سکا تو آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ تو غریب نواز فرماتے وہ شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں. شہاب الدین تھا، میں معین الدین ہوں. اور شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا، شہاب الدین اپنی مرضی سے آیا تھا. معین الدین اپنی مرضی سے نہیں، احمد مختار کی مرضی سے آیا ہے. شہاب الدین اسلحے اور فوج پر بھروسہ تھا، شہاب الدین کو اسلحے اور فوج پر بھروسہ تھا. معین الدین کو اللہ اس کے رسول پر بھروسہ ہے. معین الدین کو اللہ اس کے رسول پر بھروسہ ہے. اور جو قوم اللہ اس کے رسول پر بھروسہ کرتی ہے وہ سواری میں کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے بڑھاتی ہے. اب حالات دیکھ لیں، ہمارے دلوں سے نبی کی محبت نکل گئی، اس لیے آج ہم ذلت کی کھائی میں گر گئے ہیں پیارے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ کو بڑے پتہ کی بات بتاؤں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ قرب قیامت لوگ مسلمانوں کو مارنے کے لیے ایسے دعوت دیں گے کہ جیسے پلیٹ میں کھانا ہو اور اسے کھانے کے لیے لوگوں کو چاروں طرف سے بلایا جائے، ایسے دعوت دیں گے. نبی نے فرمایا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ نبی نے فرمایا نہیں صحابہ تم اس وقت کم نہیں ہوگے، کثیر تعداد میں ہوگے. عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیوں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تمہاری ہیبت کافروں کے دل سے نکال دے گا. اللہ تمہاری ہیبت کافروں کے دلوں سے نکال دے گا. جب ہم نبی کے فرما بردار تھے ہماری ہیبت کافروں کے دلوں پر تھی. اللہ اکبر. آج دیکھ رہے دھرم سنسد کے نام پر ہماری بات کی جاتی ہے اور یہ دھرم سنسد آج پہلے نہیں ہوئی، اب سے پہلے بھی. آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، لوگوں نے ایک سنسد بلائی اور میٹنگ کی گئی کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے. عیسائیوں نے بہت بڑی پلاننگ کی کہ آؤ اس پر منتن کریں گے، بات کریں گے کہ اسلام کو کیسے مٹایا جائے. اللہ اکبر. لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں کے مجمع میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کا ایک بوٹ بھی بیٹھا ہوا ہے اور ایک اسپیکر کو بلایا گیا، ایک بولنے والے کو بلایا گیا. کہا تم بولنے والے ہو، بڑا فصیح اللسان ہو، بڑا بڑی
मीटिंग कर रहे हैं कि इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए, तो मजमे में से एक बूढ़ा खड़ा हो गया। बोले बाबा, बोले बादशाह किस लिए बुलाया है? कहा इसलिए बुलाया है कि आज हम इस बात पर मीटिंग करें कि इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। अल्लाह अकबर। बाबा कहने लगा अगर इस्लाम को मिटाना है तो इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा हीरो खालिद बिन वलीद है। सुभान अल्लाह। इस्लाम का सबसे बड़ा हीरो खालिद है। खालिद, अगर खालिद को मिटा दिया जाए, खालिद का सफाया कर दिया जाए तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। यही बात चल रही थी तो लीडर खड़ा हो गया बताने के लिए कि इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। जैसे ही खड़ा हुआ उसके पैरों पर कपकपी तारी हो गई, नीचे से कांपने लगा। बादशाह ने कहा तुम कांप क्यों रहे हो? तुम तो बड़ा फसीहुल लिसान थे, तुम तो बड़ा बलीगुल बयान थे, बड़ा अच्छा बोलने वाले थे। तो वो कहता है बादशाह मैं कल भी बोलने वाला था, आज भी बोलने वाला हूँ। कहा फिर बोल क्यों नहीं पा रहे हो? कहा इस महफिल में नबी का कोई गुलाम बैठा है, उसकी हैबत ने मेरी जबान पर ताले डाल दिए हैं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने औलियाए कराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस मजमे में नबी का एक गुलाम बैठा है, उसकी हैबत ने मेरी जबान पर ताले डाल दिए हैं। कहा पता कैसे चले वो कौन है? इतने मजमे में नबी का दीवाना कौन है, मुस्तफा का आशिक कौन है? तो लोगों ने कहा उसे नबी का वास्ता दे दो। उसे जब नबी का वास्ता दिया गया, ए नबी के गुलाम तू जहां भी है खड़ा हो जा। तो बीच मजमे में एक नौजवान खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा नौजवान तुझे मौत से डर नहीं लगता, आखिर तू कौन है? तो नौजवान ने कहा बादशाह सुनो, मेरा नाम खालिद बिन वलीद है। खालिद बिन वलीद है। जब हम नबी के फरमाबरदार थे, अल्लाह पर हमारी हैबत लोगों के दिलों पर थी, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह पर कुर्बे क़यामत लोग ऐसे दावत देंगे जैसे खाने पर लोगों को बुलाने के लिए दावत दी जाती है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह क्या उस वक्त हम कम होंगे? नबी ने फरमाया नहीं सहाबा तुम कम नहीं होगे, तुम कसीर तादाद में होगे। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह फिर ये होगा कैसे? आखिर ये मामले बनेंगे कैसे? नबी ने फरमाया उस वक्त युहिब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत, लोग दुनिया से प्यार करेंगे और मौत से डरेंगे। लोग दुनिया से प्यार करेंगे और मौत से डरेंगे। इसी वजह है कि अल्लाह ने हमारी हैबत उनके दिलों से निकाल दी है। मेरे प्यारे दुनिया में रहकर के मुस्तफा से प्यार करो, दुनिया में रहकर के नबी से प्यार करो। अल्लाह पर प्यारे आखिरी बात समाप्त कर लो, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो गरीब नवाज असर से लेकर मगरिब तक रोते रहा करते थे। एक नौजवान था जो अजमेर से बाहर गया हुआ था, उसने देखा कि ये फकीर बाबा जब मैं आता हूँ ये रोता हुआ नजर आता है, जब मैं गुजरता हूँ ये फकीर बाबा मुझे रोता हुआ नजर आता है। उस नौजवान ने माँ से पूछा माँ एक फकीर बाबा है, मुसलमानों का बाबा है, माँ मैं जब गुजरता हूँ फकीर बाबा मुझे रोता हुआ नजर आता है, माँ ये फकीर बाबा क्यों रोता है? तो माँ ने कहा मेरे लाल मुझे क्या मालूम क्यों रोता है, जब उसे बाबा से पूछ लेना कि तू क्यों रोता है। अल्लाह अकबर। वो नौजवान गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करता है बाबा ए मुसलमानों के बाबा जब मैं इधर से गुजरता हूँ आप मुझे रोते हुए नजर आते हैं, बाबा आप क्यों रोते हैं? कभी मैंने आपकी आंखें आंसुओं से खाली नहीं देखी। अल्लाह अकबर। तो गरीब नवाज फरमाते मुझे अपने पीर की याद आती है, मैं अपने पीर की याद में रोता हूँ। नौजवान कहता है बाबा अगर किसी को तकलीफ हो तो इंसान रोता है, बात समझ में आती है, अगर कोई सख्त हो इंसान रोए बात समझ में आती है, लेकिन बाबा क्या मोहब्बत में भी कोई रोता है? क्या मोहब्बत में भी रोना आता है? गरीब नवाज फरमाते हाँ मोहब्बत में भी रोना आता है। सुभान अल्लाह। में भी रोना आता है। तो नौजवान कहता है बाबा फिर मुझे भी रोना है, बाबा फिर मैं भी रोना चाहता हूँ मोहब्बत में। तो गरीब नवाज ने फरमाया मेरी दो शर्तें हैं, मेरी दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि तू कलमा पढ़ ले और दूसरी शर्त ये मेरा मुरीद हो जा। सुभान अल्लाह।
दूसरी शर्त ये मेरा मुरीद हो जाओ। नौजवान मुरीद हो गया, गरीब नवाज की बारगाह में रहने लगा, गरीब नवाज की बारगाह में रहता रहा। खाना गरीब नवाज के साथ खाता था, पानी गरीब नवाज के साथ पीता था, उठता गरीब नवाज के साथ था, बैठता गरीब नवाज के साथ था। एक मुद्दत हो गई गरीब नवाज के साथ रहते रहते, अब उसको गरीब नवाज की आदत पड़ गई। एक दिन गरीब नवाज ने फरमाया, नौजवान जब तुझे 3 दिन की छुट्टी है तो 3 दिन के लिए अपने घर चला जाओ। नौजवान ने जब सुना 3 दिन, बोले कोई बात नहीं, 3 दिन की तो बात है, चौथे दिन आपसे मुलाकात करूंगा, कोई मसला ही नहीं। नौजवान अपने घर चला गया। अल्लाह अकबर, जब घर पहुंचा है ना, नौजवान जब घर पहुंचा और शाम का जब वक्त हुआ तो नौजवान का दिल कुछ हल्का हल्का लगने लगा। नौजवान ने टहलना शुरू कर दिया। माँ ने पूछा, मेरे लाल क्या बात है? कहा, माँ कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, और रात आई। नौजवान और जब और रात आई, बेचैनी पड़ने लगी। अल्लाह अकबर, माँ ने कहा, मेरे लाल आखिर पता तो सही क्या बात है? माँ बेटा कहता है, माँ मुझे कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है। माँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी कोई चीज गुम हो गई हो। अल्लाह अकबर, जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा, नौजवान ने रोना शुरू कर दिया और नौजवान सारों कतार रोने लगा और रोते रोते माँ से कहता, मेरी माँ गरीब नवाज की बारगाह में कहते कि मुझे बुला ले, अगर न बुलाया तो उनकी मोहब्बत में मैं मर जाऊंगा। माँ मेरी जान निकल जाएगी, माँ मुझे गरीब नवाज की याद आ रही है। माँ दौड़ी दौड़ी गरीब नवाज की बारगाह में जाती है, अर्ज करती, हुजूर मेरा बेटा है, न जाने आपकी कैसी मोहब्बत है, मेरे आका वो आपकी मोहब्बत में रो रहा है, आप उसे बुला ले, आप उसे बुला ले, मेरा इकलौता बेटा है, हुजूर मेरे बेटे पर रहम कीजिए। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज ने फरमाया, तू माँ है, माँ की ममता देखी। गरीब नवाज ने फरमाया, ठीक है भेज दे भेज दे। नौजवान दौड़ा दौड़ा गरीब नवाज की बारगाह में आया। गरीब नवाज को देख करके सारों कतार रोने लगा। नौजवान रो रहा है, गरीब नवाज नौजवान को देख करके रो रहे हैं और नौजवान गरीब नवाज को देख करके रो रहा है। एक दीवाना कहता है, मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, वो मुझे सुना के रोए, मैं उसे सुना के रोए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, फैज़ाने औलिया कराम, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आसमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाने मोहब्बत, वो मुझे सुना के रोए, मैं उसे सुना के रोऊं। मेरे प्यारे, हम गरीब नवाज के वतन में रहते हैं। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला नाना के दीन को लेकर के हिंदुस्तान में आए हैं और वो नाना का दीन हमें मिला है हिंदुस्तान में रह करके। मेरे प्यारे, मुस्तफा से प्यार करो। जो मुस्तफा से प्यार करता है वो यहाँ भी कामयाब नजर आता है और मरने के बाद भी कामयाब नजर आता है। इस दुनिया में रहने के लिए मेरे प्यारे अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो। हर इंसान दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया, हमें दुनिया छोड़ करके जाना है। कहीं ऐसा ना हो प्यारे कि हमारा जनाजा उठाया गया हो और लोग हमारे जनाजे को देख करके कहें कि लोगों देखो किसी बेनमाजी का जनाजा जा रहा है, लोगों देखो किसी अय्याश का जनाजा जा रहा है, लोगों देखो किसी मक्कार का जनाजा जा रहा है। अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि जब तुम दुनिया से जा रहे हो, तुम्हारा जनाजा उठाया गया हो, तो लोग तुम्हारे जनाजे को देख करके ये कहने पर मजबूर हो जाए, लोगों खड़े हो जाओ, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है, ये लोगों खड़े हो जाओ, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। और तुम्हारा जनाजा इस दुनिया से जाते जाते दुनिया को आखिरी पैगाम दे रहा हो कि दुनिया वालों सुनो, लहद में इसके रुके से का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहुंच सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कलमे शरीफ का जिक्र कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।